again I come back to my channel Chemistry with Viswajit Seal with a new topic which name is Chemical Kinetics. Today we discuss a new chapter which is called Chemical Kinetics. So I wish you are in home and be safe. Today we discuss the chemical kinetics. This is the introduction. First with that, please subscribe and click the bell icon so you can continuously take the videos. Now we come back to the topic chemical kinetics. This is the introductions. In this chapter we read these things, whole these things in the chapter, and in this chapter we categorize different things. I divided this whole the chapter in three parts, which is the part 1. These three are part 2. Part 2 and the rest one is part 3. If something is left in this video, then I will arrange. So in this introduction, first is what is chemical kinetics, type of reactions, rate of equation, instantaneous rate of reaction, rate factor affecting the rate of reactions, rate law expression, order of reaction, molecularity of reaction, integrated rate law method, threshold energy, activation energy, and the Arrhenius equation. These whole things included in chemical kinetics. So students, now we start today's video with started with the chemical kinetics. So first is that what is chemical kinetics? What we start in? We start in this chemical kinetics that the branch of chemistry, this is a branch of chemistry, केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें हम लोग अभिक्रिया के दर, रेट्स ऑफ रिएक्शन के बारे में डील करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्रांच, दैट इज कॉल्ड द केमिकल काइनेटिक्स. दैट मींस रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग किसी अभिक्रिया के वेग को या दर को या गति के बारे में अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द केमिकल काइनेटिक्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ second thing is that type of reaction based on rates, दर के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, दर के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार. In this we discussed that according to this, on the basis of rates, there are three types of rate of reaction. First is that very fast reaction, which is called तीव्र विक्रिया, which is called तीव्र विक्रिया. First of that, we read that this reaction which is fast occurring means instantaneously they will react with each other and form the product. They are called the fast, very fast reaction. What are the reactions? Just like the reaction of acid with base and form salt plus water, that is the very fast reaction. Instant, quickly reaction, this is called very fast reaction. झट से जो हो जाए, तुरंत हमने यूज किया और तुरंत उसका रिजल्ट मिल गया, that is a very fast reaction. Second is that very slow reaction.
अत्यंत मंद, अत्यंत मंद या अत्यंत धीमी अभिक्रिया, यानी दोज रिएक्शंस विच कैरिड आउट ए लॉट ऑफ टाइम, जो बहुत सारा समय लेता है होने में, दैट इज कॉल्ड वेरी स्लो रिएक्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रस्टिंग ऑन आयरन, रस्टिंग ऑन आयरन, लोहे में जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, ये एक वेरी स्लो रिएक्शन, इसे होने में वर्षों लग जाते हैं। जो रिएक्शंस वर्षों महीनों में होते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेरी स्लो रिएक्शन। हमारा जो तीसरा टर्म है वो मंद अभिक्रिया या मॉडरेट रेट, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। मंद अभिक्रिया, those reactions which can carry out the rate, जिसके रेट कैलकुलेट किए जा सकते हैं, रेट को निकाला जा सकता है, टाइम पता कर सकते हैं, those reaction are called the moderate rate of reaction। यानी वो अभिक्रियाएं जो कुछ समय लेती है, ना बहुत जल्दी हो जाती है ना बहुत सारा समय लेती है, ये हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। लाइक दैट इसको अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें अम्ल की उपस्थिति में, तो ये बनाएगा दो मॉलिक्यूल्स जो कुछ समय लगेगा। इसे हमने लिया, इसे क्या कहते हैं, सुक्रोज। ये बन गया हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इन दोनों को जब किया तो ये कहलाते हैं मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। यानी इन्हें रिएक्शन तो होता है, इनकी दर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे क्या कि कुछ चीजें जो होने में, खाना पकने में समय लगता है, दैट टाइम्स शुड बी कैलकुलेटेड, दे आर कॉल्ड द मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। जो हम लोग समय कैलकुलेट कर सकते हैं, समय का पता लगा सकते हैं, उसकी गति को बता सकते हैं, दे आर कॉल्ड द मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। सो दीज आर द थ्री टाइप। वेरी फास्ट, जिसकी गति का पता ही नहीं लगा सकते, तुरंत हो जाती है, वो सारे रिएक्शंस होते हैं फास्ट, तुरंत हो जाते हैं। वेरी स्लो, जो होने में बहुत सारा समय लगता है, दैट इज कॉल्ड द वेरी स्लो रिएक्शन। और जो मध्यम गति से होते हैं, ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ज्यादा स्लो, वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं, उनका पता लगाया जा सकता है, दे आर कॉल्ड मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस। सो नाउ वी कम बैक टू द रेट ऑफ रिएक्शन। आखिर ये रेट्स है क्या? अब तक हम लोग टाइप ऑफ रेट देख रहे थे, रेट है क्या? व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? तो अब हम लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया दर, जिसे कहते हैं हम लोग अभिक्रिया। बहुत सारी चीजों में हम लोगों ने देखा है, दर मीन्स रिस्पेक्ट टू टाइम, रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। जब किसी चीज को किसी चीज के साथ, किसी समय के साथ कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द दर। सो उसी तरह से अभिक्रियाएं भी होंगी। जब अभिक्रिया को समय के साथ कंपेयर किया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग अभिक्रिया दर। इसे कैसे पता लगा सकते हैं? सिंपली दैट, अगर हमने एक रिएक्शन लिया, माना ए से बी बन रहे हैं, हम लोग पहली चीजें जानते हैं, जो एरो के लेफ्ट साइड होता है उसे कहते हैं रिएक्टेंट, या कहें तो अभिकारक, और जो एरो के उधर बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड। इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? जब किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित होती है, उसे हम लोग अभिक्रिया दर कहते हैं। क्या कहते हैं?
अभिक्रिया दर बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय, या इसे यूं कहें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with respect to time, that means time taken, it is called the rate of reaction, which is called rate of reaction. अगर इसे इस तरह से देखा जाए, अगर ये केमिकल रिएक्शंस है ए और बी, तो एक चीज हम लोग जानते हैं क्या, कि जब तक ए खत्म नहीं होगा बी बनेगा नहीं, यानी बी बनने के लिए ए की मात्रा को घटना जरूरी है। अगर ए की मात्रा घटेगी तो बी की मात्रा बढ़ेगी। चलिए फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। ए से बी बन रहा है, ए हम लोगों का है, ए से हमें बी बनाना है। ये तभी संभव है जब ए का अमाउंट डिक्रीज होगा तो इसका अमाउंट इंक्रीज होगा। ए की मात्रा जितनी घटेगी बी की मात्रा उतनी बढ़ेगी। इस आधार पर अगर हम लोग लिखना चाहें तो अभिक्रिया दर, रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए अभी हमने क्या डिस्कस किया, समय के साथ सांद्रता, किसकी सांद्रता, ए की सांद्रता, किसके साथ, समय के साथ, और क्या हो रही है, वो धीरे धीरे घट रही है। तो घटने के लिए हम लोग माइनस साइन लगाते हैं। जब कोई चीज घटता है तो उसके लिए माइनस, और साथ ही परिवर्तन हो रहा है इसीलिए हम लोग डी एक सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाने के लिए ये डी का रिस्पेक्ट हम लोग यूज करते हैं। अगर इसी को देखा जाए बी के रिस्पेक्ट में तो बी पे हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे, बी पे लगाएंगे प्लस, क्योंकि इसकी मात्रा बढ़ रही है। जिसकी घटती है यानी जो रिएक्टेंट साइड होगा उसमें एक स्पेसिफिक साइन लगेगा, जो होगा ये माइनस वाला साइन, और जो उत्पाद की तरफ होंगे उसमें कोई साइन या नहीं होगा तो उस पर हम लोग पॉजिटिव साइन लगाएंगे। यह है दर निकालने की विधि। जब किसी की सांद्रता दी हुई हो और समय दिया हुआ हो तो उसकी दर और सांद्रता के आधार पर हम लोग अभिक्रिया दर निकाल सकते हैं। इसे डी के जगह हम लोग यूं कुछ डेल ए बाय डेल टी भी लिख सकते हैं, परंतु उसके साथ क्या लगाना होगा हमें, एक माइनस। इक्वल्स टू के बाद हमें बी की भी सांद्रता लिखनी है तो डेल बी बाय डेल टी, लेकिन प्लस। तो किसी अभिक्रिया में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया दर कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तात्कालिक अभिक्रिया दर, जिसे कहते हैं तात्कालिक अभिक्रिया दर। यह भी अभिक्रिया दर है, बट तात्कालिक यानी तुरंत, जो अभिक्रियाएं तुरंत हो जाती है उन्हें कहते हैं, उनकी दर को तात्कालिक अभिक्रिया दर। जिस प्रकार ए से बी अगर होने में अगर इसकी तात्कालिक अभिक्रिया दर निकालनी है, तात्कालिक अभिक्रिया दर अगर ज्ञात करनी है तो हम लोग एक चीज का यूज करते हैं जिसका नाम है लिमिट। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा लिमिट।
T टेंस टू 0। साथ ही साथ हम लोग लगाते हैं जो हमारा टर्म्स था dA/dt विथ माइनस साइन, या फिर हमें अगर लिखना है तो हम लिमिट लगा करके b के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं t टेंस टू 0 बट dB/dt। अगर a b के रिस्पेक्ट में लेंगे तो एक अभिक्रिया दर में केवल हमें सांद्रता यूज करनी है और समय के साथ, जबकि तात्कालिक अभिक्रिया दर में एक लिमिट t टेंस टू 0। इसका मतलब होता है समय 0 नहीं है, 0 के नियरेस्ट है। ये 0.001 सेकेंड्स भी हो सकता है, 0.01 पार्ट भी हो सकता है, लेकिन t 0 के नियर बाई है, परफेक्ट 0 नहीं है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग, बट उससे पहले हम लोग कुछ रेट्स निकालने देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक रिएक्शन दिया हुआ है 3a + 2b, देन फॉर्मेशन ऑफ A3B2। एक रिएक्शन हो रहा है, 3 अणु हमने A के लिए, 2 अणु B के लिए, A3B2 बन रहा है। इसके दर को कैसे दिखाएं? अभिक्रिया दर को। इसकी अभिक्रिया दर को दिखाने के लिए बहुत आसान तरीका है। अभिक्रिया दर लिखेंगे, हमें टारगेट करना है उत्पाद या अभिकारक। अगर हमने उत्पाद, अगर इसको यू लिखे सर, चलिए भाई थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, इसको C और D बना रहे, 2C 3D बनता। अगर हमने ये लिया है तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। अभिक्रिया दर रिस्पेक्ट टू A B C D, चारों में हम कैसे निकाल सकते हैं? चारों में निकालने का एक तरीका तो हम लोगों ने सीखा, क्या भाई? हमें लिखना है dA/dt। क्या लगाना है? साथ में एक माइनस, एक और बनाएंगे dB/dt। इसमें भी हमें क्या लगाना है? माइनस। एक और बनाएंगे dC/dt। इस पे हम लोग माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड का है, और एक बनेगा dD/dt, ये भी प्रोडक्ट साइड का है। अब बात आई सर हमने तो ये लिख दिया, लेकिन ये जो नंबर्स दिए हुए उनका क्या यूज है? अगर ये नंबर्स देखा जाए तो अब हम लोगों को ध्यान रखना है, नंबर से हम लोग जब भी रेट निकालते हैं वो यूनिट मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं। जब भी अभिक्रिया की दर निकाली जाती है एक मॉलिक्यूल के लिए, हमारे यहाँ क्या है? A है 3 मॉलिक्यूल, B है 2 मॉलिक्यूल, C है 2 मॉलिक्यूल, D है 2 मॉलिक्यूल। सो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 10 चीजें हैं, उन्हें एक निकालना है तो क्या करना होगा? 10 से डिवाइड करते हैं। उसी तरह से अगर A कितने भाग में है? 3 भाग में, उसे एक भाग बनाना है, क्या करना है? 3 से डिवाइड कर देते हैं। अगर B 2 भाग में है, इसे करना है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये करना है 1/2 एंड दैट 1/3। समझ गए? करना क्या है? सिर्फ जितने नंबर्स आएंगे उसको 1/, के फॉर्म में लिख देना है, दैट्स इट। बस इतनी सी कहानी है। और इसके आगे अगर आपको दी हुई रहती है इसका वैल्यू, तो वो वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग मान निकालेंगे। जैसा कि इसके साथ मैं आप लोगों को एक PDF दे दूंगा जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हुए रहेंगे, जिन्हें देख करके और उन्हें प्रैक्टिस करके आप बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग किसी भी रिएक्शन का, चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं। जैसा अगर हम लोगों ने ये लिखा 2p + Q देन फॉर्मेशन ऑफ Z। अगर ये बना है 2p और Q को मिलाने के बाद Z बनता है, इसकी अभिक्रिया दर निकालनी है तो इसकी अभिक्रिया दर भी वैसे ही होगी। कैसी होगी? अभिक्रिया दर बराबर, पहला तो हम लोग काम करेंगे dP/dt, साथ में क्या लगाना है? एक माइनस। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? dQ/dt। इसके साथ में क्या लगाना है? एक माइनस। क्यों भाई? ये दोनों रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। इसके बाद क्या लगाना है? dZ/dt।
dt। इसमें नहीं लगाना है क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड है। जो रिएक्टेंट होगा, जो अभिकारक की तरफ होगा, उसी में माइनस, बाद बाकी में प्लस। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमें यूनिट मॉलिक्यूल बनाने हैं। यूनिट मॉलिक्यूल बनाने के लिए जितना भी नंबर ज्यादा होगा उसको 1/, लिख देंगे। इस तरह से हम लोग कोई भी रिएक्शंस का अभिक्रिया दर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जिनमें से कुछ कारक इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता। देखिए एक टर्म कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो भी अभिकारक है उसकी सांद्रता पर ध्यान देना है, क्योंकि हमें जो रिएक्शन बनाना है, जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा, कोई भी रिएक्शन हो रहा है ए से बी, ए की मात्रा पे निर्भर करता है। अगर ए की मात्रा x है, इसकी मात्रा 0, ए की मात्रा जितनी घटेगी उतनी मात्रा इसकी बनेगी। सो अभिक्रिया की सांद्रता डिपेंड करेगा कि अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है। अगर अभिकारक की सांद्रता उच्च है तो अभिक्रिया की दर भी अधिक होगी। अगर अभिकारक पदार्थ, अभिकारक की सांद्रता, इसमें हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, क्या, कि किसी ताप पर किसी अभिक्रिया की दर उसकी सांद्रता के समानुपाती होती है। यानी अगर देखा जाए दर प्रोपोर्शनल टू, अगर इस अभिक्रिया दर प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता, यानी अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी तो दर भी बढ़ेगा। दूसरा टर्म्स यूज है ताप। ये तो हम लोग जानते हैं, कोई भी रिएक्शन को जल्दी कराना है उसके ताप को इंक्रीज कर दीजिए। कब? जब वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होगा। ये चीजें सॉलिड और एंड लिक्विड स्टेट में अप्लाई होगी, गैसियस स्टेट में नहीं। सॉलिड लिक्विड अवस्था में अगर आपने दर बढ़ेगा कब? जब बढ़ेगा ताप। ताप के साथ दर प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा फॉर सॉलिड एंड लिक्विड थिंग्स। टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज, थर्ड इज अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट रिएक्शनेबल है, यानी अगर उसका रिएक्शंस होता है, वो टेम्परेचर के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्युबिलिटी होती है, तो उसके साथ दर भी डिपेंड करेगा। अगर हमें अल्कोहल में चीनी घोलना है तो वो नहीं घुलेगा, उसकी दर घट जाएगी। लेकिन उसी चीनी को जल में घुलाते हैं तो दर बढ़ती है, क्योंकि वो उसके साथ घुलता है। तो अभिकारक की प्रकृति। नेक्स्ट इज दैट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फोर्थ वन, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति। किसी भी रिएक्शन में उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक वो पदार्थ है जो रेट को इंक्रीज करता है, वो कहलाता है उत्प्रेरक। अगर उत्प्रेरक उपस्थित रहेगा तो ऑब्वियसली अभिक्रिया की दर खुद ब खुद बढ़ जाएगी। दर प्रोपोर्शनल टू उत्प्रेरक। कैसा भाई? धनात्मक। इसके आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक में भी टाइप्स होते हैं। जो धनात्मक होंगे, जो बढ़ाने वाले होंगे, वो दर को बढ़ा देंगे, और जो दर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उत्प्रेरक, कब? जब हमारा ये ऋणात्मक होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शंस को डिक्रीज करता होगा। सरफेस एरिया, पांचवा, सरफेस एरिया।
पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया अगर अधिक होगा तो रेट भी अधिक होगा। क्यों भाई? अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दर भी ज्यादा होती है। जैसे क्या, अगर हम लोग एक कटोरे में पानी रखते हैं तो वो उसके कंपेयर में एक पूरे फर्श से पानी जल्दी उड़ता है। यानी उदाहरण यूं कहें, एक कटोरे में कुछ मात्रा में वाटर लेते हैं, उसी को जब हम लोग जमीन पे फेंकते हैं और उसी को हम लोग एक कटोरे में रखते हैं तो जमीन वाला पानी जल्दी वेपराइज हो जाता है, कटोरे वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जमीन पे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दर भी अधिक होगी। यह है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा तो दर भी अधिक होगी। यह है हम लोगों का रेट अफेक्टिंग दिस। अब हम लोगों कुछ वर्क्स दे देते हैं जिसमें आप लोगों को ट्राई करना है कि हम लोग दर कैसे निकालते हैं कुछ रिएक्शंस के। जैसे कुछ रिएक्शंस है ये, N2 प्लस H2 NH3। आप लोगों को ये संतुलित कर अभिक्रिया दर बताएं। नंबर 1। नंबर 2, एनी अदर रिएक्शंस, किसी भी रिएक्शंस को ले लेते हैं। मान लीजिए HI है, इसको आपने तोड़ा, बना H2 प्लस I2, इसको भी ले सकते हैं। थर्ड वन, जब हम लोग कोई और रिएक्शंस देखते हैं, जैसे हम लोगों ने Fe को रिएक्शन कराया O2 से, बन गया Fe2O3। फोर्थ वन, NH3 प्लस HCl, देन फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl। इन सारे का आप लोग रेट रिएक्शंस ट्राई करेंगे निकालने का। और मेरे स्टूडेंट्स, इस बार वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो आप मेरे से व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और इससे रिलेटेड नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज स्टे इन होम and be safe in your home. Take care. Thank you.